Hello, my dear students. I, Drashti ma'am, welcomes you to lecture number 40 of chemistry. We are going to start with a new chapter, chapter number 5, and last chapter of chemistry, that is periodic classification of elements. This chapter is very important because this chapter is also interesting. You will get to know how many elements are there in nature, how are they found, how can you classify them, what is modern periodic table, everything you can study. And if you are going in further standards in 11th and 12th, you have to study this table in detail. Okay, the whole table, that is periodic classification of modern elements, you have to study in detail. Okay, so to study in detail, you should know the basic things of the periodic table, okay, which are very important. I'm again repeating, this chapter is very important for higher standard studies, as well as for the understanding purpose also. It is very important. Also, it is interesting, so you will not get bored. But what you have to do is, the day I teach you something, you have to watch that lecture. I have already provided you the notes of chapter number 5. Okay, you all have notes of chapter number 5, so just take a print out of it. What you have to do is just watch the lecture, understand it, again watch the lecture and understand it. Every lecture would be of 30-35 minutes. What you have to do is just take out one or 1.5 hour, watch the lecture twice. Without fail, you have to watch the lecture twice, because if you will watch the lecture twice, your concepts will be thoroughly cleared in this chapter. Because this chapter is not thoroughly theory chapter, you have to understand things. Okay, and then only you can attempt some questions. So your basic concept should be clear in this chapter. So from the beginning, I am warning you that you have to watch the videos twice. Though you understand each and everything in the first time, you have to watch the video lecture again, so that you don't forget. In this chapter, the main thing is we forget, and later on, if you will get confused, then the whole thing is, your whole hard work will get wasted. बिकॉज इस चैप्टर में इट इज वेरी नेसेसरी कि स्टार्टिंग से आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे से आपका सारा स्मूथली ये चैप्टर समझ में आपको आ जाए. तो जिस दिन मैं समझा रही हूँ उस दिन कोशिश करनी है सबको कि 2 बार वीडियो लेक्चर देखो और फिर नोट्स में से उसी दिन आप सारी चीजें प्रिपेयर कर दो. Okay, that is my suggestion to you. I kindly request you कि please watch the lectures of this chapter twice. Okay, so let's go and start with this interesting chapter. Okay, so the contents which we are going to study today are some introduction, that why classification was necessary of so many elements, Taubernier's triad, Newland's octave, and we are going to start just the introduction part of Mendeleev's periodic table. Okay, so when I talk about magic, what do you feel? You know what? If you have seen chemistry, if you have understood chemistry, chemistry is all about magic. You have to mix two things and you get a new product, right? So magic is chemistry. Okay, so it is a very interesting subject. So many scientists keep on trying and doing experiments. So what happened once is, if you all have seen Harry Potter in Philosopher's Stone, do you know what is Philosopher's Stone? Harry Potter and the Philosopher's Stone. This was the Philosopher's Stone. तो इस स्टोरी में क्या था, आपको एक फिलोसोफर स्टोन मिलता है. जिसको भी ये स्टोन मिल जाता है, उसका फायदा क्या था कि दैट पर्सन बिकम्स इमॉर्टल. इसीलिए ये स्टोरी आई कहाँ से? ये स्टोरी ऐसे ही नहीं आई है, इसका कुछ हिस्ट्री है. ओके, देयर इज सम हिस्ट्री बेस्ड ऑन दिस स्टोन. सो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली इज, ये स्टोन जिसे भी मिल जाता है वो एक तो इमॉर्टल हो जाता है, और दूसरा वो बहुत ही रिच हो जाता है, बिकॉज दे थॉट कि दिस कंटेन्स गोल्ड. ओके, बिकॉज आप सबको येलो लाइट दिख रही है यहाँ पे, उन सब साइंटिस्ट को सबको ऐसा लगता है कि दिस कंटेन्स गोल्ड एंड देयरफॉर दे शुड हैव दिस स्टोन. So there are many scientists. This concept is very old. Okay, so earlier scientists believed that existence of philosopher's stone is there. Okay, ये real में कहीं ना कहीं है philosopher's stone, and therefore many scientists tried to make philosopher's stone and died also. Okay, one of such was Henning Brand.
ओके, ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड फिलोसोफर स्टोन, वो बना रहा था फिलोसोफर स्टोन। ओके, तो फिलोसोफर स्टोन बनाने के लिए उसने क्या किया, उसने ह्यूमन यूरिन का एक सैंपल लिया, उसमें सैंड डाला और डिस्टिलेशन किया। ओके, ही डिस्टिल्ड द ह्यूमन, डिस्टिलेशन ऑफ ह्यूमन यूरिन किया उसने। डिस्टिलेशन आप सबको पता होगा, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सो उसने क्या किया, उसने ह्यूमन यूरिन का सैंपल लेके उसको डिस्टिल किया, सैंड डाला था उसने थोड़ा सा, जब जैसे उसने फिल्टर किया उसको एक ब्लैक रेसिड्यू मिलता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच ही ऑब्जर्व, ओके, इज दिस ब्राइट येलो लाइट। ये ब्राइट येलो लाइट उसे दिखती है, येलो कलर ग्लोइंग फायर यू कैन से, एंड ही गॉट समथिंग। He just mixed two things and he found something. What did he found? He found phosphorus. उसने एक सब्सटेंस फाइंड किया, उसने एक एलिमेंट फाइंड किया जिसको उसने नाम फॉस्फोरस दिया। ये फॉस्फोरस नाम क्यों दिया? बिकॉज वो किसके लिए ढूंढ रहा था, वो क्या कोशिश कर रहा था, उसको क्या चाहिए था, उसको चाहिए था फिलोसोफर स्टोन। ओके, तो फ्रॉम द नेम ऑफ फिलोसोफर स्टोन उसने नाम रख दिया फॉस्फोरस। ओके, तो दिस वाज वन स्टोरी कि ये फॉस्फोरस कैसे बना। In this way there are so many stories, okay, and this was first scientifically discovered stone, okay, या आप बोल सकते हो फर्स्ट साइंटिफिकली डिस्कवर्ड स्टोन है, एंड हेंस मेनी एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एंड ईच वन हैज डिफरेंट स्टोरीज। ओके, ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल भी हमने प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ हमें नेचुरली एलिमेंट्स मिले हैं। तो देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स which were discovered one by one and one by one, and each and every element have different stories. Some of them also you will study in higher standards. Okay, so the only thing which I want to tell you is this is interesting chapter. Chemistry itself is interesting because you have to just mix two things and you get a different thing, you find something new, right? So it's like magic, and Henning Brand also did something like this. He tried to make philosopher's stone but he found phosphorus. Okay, so this is about one element story. As I told, ऐसी बहुत सारी stories हो सकती है. So in nature, you know how many elements are present? 118 elements. ये हमने एक element की बात की है. There are 118 elements known today. Okay. So now we are going to study how are they, where are they, how do we study them, कितने elements है, कौन से elements है, उनकी properties कैसी है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीजें हमें अभी पढ़नी है। ओके, और ये कैसे हमने क्लासिफाई किया है, लेट्स सी। So there are 118 elements known as I told, right? So it is like if you go to a supermarket and it is a messy supermarket. ये यहाँ पे तो बहुत ही arranged है supermarket, right? आप अगर messy supermarket में चले जाते हो जहाँ कुछ भी arrange नहीं है और आपको एक शैम्पू ढूंढने के लिए मैं बोल रही हूँ, so it would be so difficult for you. जहाँ कुछ classify भी नहीं किया है, सब ऐसे रख दिया है, ऐसे तैसे रख दिया है, तो आपको शैम्पू ढूंढने के लिए बोलूंगी तो it would be very difficult for you, right? In a messy supermarket. So therefore same thing happened with elements. सारे elements साथ में थे, क्या था, कौन सा, कहाँ रखे, कुछ पता नहीं था, right? तो elements भी ऐसे रखे थे कि हम कैसे उनको study करें। तो इसीलिए स्टडी करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए थे, बहुत सारे एलिमेंट्स स्टार्टिंग में आ गए, फिर कैसे उनको स्टडी करें। स्टडी करने के लिए some scientists thought that classification or arrangement is required. Some classification, or you can say some proper arrangement is required. Why it is required? Why classification is required? Okay, why do we require classification or arrangement? That we have to study now. So why a proper need of classification is required? That is because there were so many elements known, in a very large amount the elements were known and we don't know where to put them. इसीलिए स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने क्या सोचा, एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन उन्होंने कर दिया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। कैसे कर दिया? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जैसा क्लासिफिकेशन कर दिया। दिस इज द मेन क्लासिफिकेशन व्हिच साइंटिस्ट थॉट। तो उन्होंने मेटल्स और नॉन मेटल्स में एक, आप सोचो ना कि आपके पास एक बड़ा सा वो जो पॉलीथिन होता है जिसे आप देख, या फिर कोई भी बड़ा सा बकेट लिया आपने और इसमें सारे एलिमेंट्स साथ में थे, बहुत सारे एलिमेंट्स थे इसमें। ओके, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 56 to 118 एलिमेंट इसमें आ सकते थे। अब इतने सारे एलिमेंट्स में स्टार्टिंग में पहले 56 एलिमेंट्स ही थे, धीरे धीरे करके 118 हुए हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे,
तो इन एलिमेंट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक में सारे मेटल्स रख दिए और एक में सारे नॉन मेटल्स रख दिए। अब मुझे कैसे पता चला कौन से मेटल है और कौन से नॉन मेटल है? तो ये मुझे ऐसे पता चला कि हमने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज करी है, राइट? कि मेटल्स आर हार्ड, they are sonorous, malleable, ductile, right? All these things we studied. तो बस यही हुआ। साइंटिस्ट ने भी क्या किया, साइंटिस्ट ने हर एक एलिमेंट को उठाया, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी, हार्डनेस, सोनोरसनेस, ये सब चीजें उसने सोची, एवरीथिंग उसने टेस्ट किया और फिर मेटल्स को भी अलग कर दिया। जो एलिमेंट्स उसको ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लस्ट्रस थे, मेलेबल थे, डक्टाइल थे, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग था, ऐसे एलिमेंट्स को उसने बोल दिया मेटल्स और बाकी के एलिमेंट्स को उसने बोल दिया नॉन मेटल्स। ठीक है, बाकी के एलिमेंट्स को उसने क्या बोल दिया? नॉन मेटल्स। बट अभी और एक गड़बड़ हो गई। अभी ऐसा हो गया कि मेटल का जो हमारा बकेट था वो बहुत ज्यादा भर गया था, बहुत ज्यादा। तो उसमें से भी एक एक मेटल को निकाल के स्टडी करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। ओके, मेटल्स बहुत सारे मिल गए थे हमें, तो उसमें से भी एक एक मेटल को स्टडी कैसे करें ये बहुत डिफिकल्ट हो गया था। इट इज लाइक आपको दो डिविजन्स दे दिए सुपरमार्केट में, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। ओके, क्या दे दिया है? ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। और आपको बोला है आप शैम्पू ढूंढ लो, तो चलो आप नॉन ईटेबल्स में तो चले गए, बट नॉन ईटेबल्स भी कितनी सारी चीजें होती है, उसमें से भी अभी शैम्पू ढूंढना आपके लिए डिफिकल्ट है, राइट? तो इसीलिए ऐसी चीज यहाँ पे हो गई कि मेटल्स में बहुत सारी चीजें थी, इसलिए हर एक एलिमेंट को स्टडी करना इट वाज स्टिल डिफिकल्ट फॉर अस। ओके, ऑल्सो इट वाज देयर वाज वन मोर रीजन जिसकी वजह से हमारे पास क्लासिफिकेशन की जरूरत बहुत ज्यादा हो गई थी, दैट इज बिकॉज सम एलिमेंट शोड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, उन्होंने मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी दिखानी स्टार्ट कर दी। दे आर नोन एज मेटलॉइड्स नाउअडेज, राइट? जैसे कि पैलेडियम मेटल है, वो मेटल है बट इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंटीमनी है, इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट? सिमिलरली जर्मेनियम शोड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड है? अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन, बिकॉज पहली डिफिकल्टी हमने क्या देखी कि मेटल में बहुत सारे मेटल्स आ गए थे, तो अभी भी इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल metals and classify them. So there is a broader classification, still a broader classification required. ये metals non metals वाला, सिर्फ metals non metals वाला classification नहीं चलेगा, क्योंकि metals में अभी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से भी कुछ elements ऐसे हैं जो दोनों की property हमें दिखाते हैं, and that is why classification was required. A broader, a better, a nice classification was required, because यहाँ पे क्या हो गया, एक और प्रॉब्लम हो गई। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम, जिससे हम सुपरमार्केट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, कैसे समझाऊं, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यही बात हो गई कि मैंने आपको बोला है कि आप मेडिसिन लेके आओ, ठीक है? अब मेडिसिन ईटेबल भी नहीं है और नॉन ईटेबल भी नहीं बोल सकते, राइट? मेडिसिन को ईटेबल भी नहीं बोल सकते और नॉन ईटेबल भी नहीं बोल सकते। तो ऐसे भी एलिमेंट्स थे जो मेटल भी नहीं थे और नॉन मेटल भी नहीं थे, वो दोनों के बीच की प्रॉपर्टी बताते थे, लाइक मेडिसिन्स। ओके, so that is why the classification was, a good classification was very 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 much required. Okay, so I hope you all are clear with this. This is about why classification and proper arrangement of elements was required. Now the question arises कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने पहले सोचा कि मैं क्लासिफाई करता हूँ अच्छे से? So the first scientist who thought about classifying the elements in a proper way, the first scientist who thought about classification was John Daubeney. Daubeney was the first scientist who thought about classifying the elements. Okay, so let us see some history about Daubeney. तो ये आपको ऐसा पैराग्राफ एक येलो बॉक्स में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, हर एक साइंटिस्ट के लिए। ये हर एक स्टूडेंट को अच्छे से टेक्स्ट बुक में से पढ़ के जाना है। येलो बॉक्स में दिया होगा 3-4 साइंटिस्ट हमें पढ़ने हैं, चारों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है येलो बॉक्स में, आपको वो पढ़ के जाना है। देयर आर चांसेस कि वो कहीं ना कहीं एमसीक्यू में पूछ ले। ओके, अब डोबेनियर कौन था? तो डोबेनियर स्टडीड एज अ फार्मासिस्ट एट मंचबर्ग इन जर्मनी and then studied chemistry at Strasbourg,
Eventually, he became a professor of chemistry and pharmacy at the University of Jena. Dobenier made, ये important है, okay, जो मैंने bold किया है वो, Dobenier made the first observations on platinum as catalyst. Dobenier was the first scientist जिसने बोला कि हम platinum element को, PT, platinum element को as a catalyst use कर सकते हैं. Okay, और दूसरी चीज उसने क्या अच्छी बोली थी, he discovered triads. Okay, discovered similar triads of elements which lead to development of periodic table of elements. Starting किसने किया था क्लासिफिकेशन का, डोबेनियर ने. डोबेनियर ने दो मेन ऑब्जर्वेशन किए हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो उसने चीज ढूंढी है वो ये है कि प्लेटिनियम एज ए कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं हम. दूसरी चीज उसने ट्रायड्स ढूंढे थे. दो ट्रायड्स उसने ढूंढे, उसने क्लासिफाई किया. हिज क्लासिफिकेशन वाज नॉट सक्सेसफुल, बट एटलीस्ट उसने स्टार्ट तो किया. जब उसने स्टार्ट किया तो दूसरे साइंटिस्ट ने उसके बेसिस पे धीरे 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 आगे सोचा. अब सोचो, आप नए नए इंसान हो, आपके पास 56 एलिमेंट्स है, आप क्या करोगे, कैसे क्लासिफाई करोगे? पहले तो क्लासिफाई करना है कि नहीं करना है वो सोचना चाहिए हमें. हाँ चलो क्लासिफाई करना है, अच्छे से पढ़ पाएंगे हम, अच्छे से समझ पाएंगे एलिमेंट्स को, अच्छे से रिएक्शंस देख पाएंगे, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये. Okay, because chemistry is useful in so many ways, in so many things, so you should be clear about some elements and how those elements react. So John Dobenier was the first scientist who thought of classifying elements. Now first उसने सोचा कि हम कैसे classify करें, मेरे पास तो है 56 elements, ठीक है, अब 56 elements को मैं कैसे classify कर दूं अचानक से. तो उसने सोचा कि मेल्टिंग पॉइंट, हर एक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं. ओके, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लेके देखते हैं, क्योंकि हर एक का थोड़ा अलग ही होगा. बट वो सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि हर जगह पे मेल्टिंग पॉइंट एक ही सब्सटेंस का, सपोज आपके पास एक सब्सटेंस है, मेरे घर पे उसका मेल्टिंग पॉइंट 73 डिग्री सेल्सियस आया, बट मे बी आपके घर पे 75 आ जाए, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आल्सो, राइट. टेम्परेचर चेंज एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. तो इसीलिए ये जो एक पर्टिकुलर फैक्टर था, क्राइटेरिया था, जिससे उसने सोचा कि हम टेबल बनाते हैं या क्लासिफाई करते हैं, वो नहीं हो सकता है. विद द हेल्प ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हम किसी भी एलिमेंट को अच्छे से क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे. तो फिर उसने सोचा कि मैं क्या लूँ, किस चीज से मैं क्लासिफाई करना ढूंढूं, कैसे मैं क्लासिफाई करूं. तो उसने फिर फाइनली ही थॉट कि लेट मी टेक एटॉमिक मास. Do you know what is atomic mass? Atomic mass मतलब सपोज मेरे पास कोई भी एक एटम है, हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, लिथियम ले लो, कोई भी एटम ले लो, उनका मास देखना है हमें. ओके, जैसे हमें पता है कि सोडियम का मास क्या होता है, 11. ओके, एटॉमिक मास मतलब उसका सिंबल होता है A. क्या होता है, A. एटॉमिक मास का सिंबल होता है A. और एटॉमिक मास जनरली एटॉमिक नंबर इंटू 2 करोगे तो आपको मिल जाता है. ये हमने 9th में पढ़ा था. जनरली फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन का होता है 35.5, सोडियम का हो जाता है 11 इंटू 2, 22 नहीं लिखना है, 23 कर देना है. सो दीज आर सम एक्सेप्शंस व्हिच यू ऑल मस्ट बी क्लियर. तो डोबेनियर थॉट कि मैं क्या करता हूँ, मैं हर एक एलिमेंट, अगर है कोई भी एलिमेंट सपोज नया आया, तो उसका कुछ ना कुछ वेट तो होगा ही, उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही. तो मैं मास, ऑन द बेसिस ऑफ मास में क्लासिफाई करता हूँ, क्योंकि हर एक चीज का मास होगा, हर एक एलिमेंट का मास होगा, तो मैं अच्छे से उसको क्लासिफाई कर सकता हूँ एटॉमिक मास के हिसाब से. ओके, सो डोबेनियर started his classification on the basis of one criteria, that is atomic mass. In fact, to be more specific, I can say कि उसने एक टेबल बनाया, और उस टेबल में उसने ऐसे 3 कॉलम्स बना दिए थे, और 3-3 के ग्रुप बनाए उसने. जैसे मैं आपके 3-3 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाती हूँ. चलो, मेरे पास स्टूडेंट A है, स्टूडेंट B है और स्टूडेंट C है. स्टूडेंट A का रोल नंबर 1 है, B का 2 है और C का 3 है. तो मैंने क्लासिफिकेशन यहाँ पे कैसे किया, ओके, सो क्या किया मैंने, यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स लिए A B C, उनको एक ही कॉलम में मैंने डाल दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. क्या कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रोल नंबर, मतलब रोल नंबर नहीं तो उनके मास के हिसाब से, वेट के हिसाब से मैंने उनको अरेंज कर दिया. जिसका वेट कम है उसको मैंने पहले रखा, फिर नेक्स्ट उसके बाद का, फिर नेक्स्ट उसके बाद का. ओके, तो मैंने यहाँ पे
3 स्टूडेंट्स को अरेंज कर दिया A B C। वैसे ही उसने 3-3 के ग्रुप्स बनाए स्टूडेंट्स के, आप समझो, मतलब एलिमेंट्स के 3-3 के ग्रुप्स बनाए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जिनका मास ज्यादा है उनको नीचे रखा, कम है उसको ऊपर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे उसने 3-3 का ग्रुप बनाया, इसलिए वी कैन से दैट ही मेड ट्रायड्स। उसने क्या बनाया? ट्रायड्स। लेट्स सी दिस प्रॉपरली कि क्या उसने ट्रायड्स बनाए। So Dobenier triads जो उसने बनाए, it was like this. He made a group of 3 elements like this, like lithium, sodium, potassium, calcium, strontium, barium, and chlorine, bromine, iodine. These are known as halogens. Chlorine, bromine, iodine को बोलते हैं halogens. ये सारे क्या है? Metals है दोनों, right? So ऐसे उसने 3-3 के ग्रुप्स बना लिए। अब देखते हैं कि exactly उसने क्या observe किया, उसका So Dobenier observed 2 main things when he classified his elements like this. उसने 3-3 के ऐसे ग्रुप्स जब बनाए तो उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया कि जो भी 3 के ग्रुप बनाए हैं वो तीनों की प्रॉपर्टीज बहुत ही सिमिलर है। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर है, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, इन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। ओके, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उसने ये किया। दूसरा ऑब्जर्वेशन उसने बहुत अच्छा किया कि फर्स्ट, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास है, इट इज एवरेज ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स एटॉमिक मास। मींस फर्स्ट एलिमेंट का मास क्या है? 6.9 प्लस 39 किया उसने, एंड जब उसने इनका मीन लिया 6.9 प्लस 39 बाई 2, उसे मिला 22.9, दैट इज नियरली सिमिलर टू 23, right? So he observed a very important thing over here. The first thing is that all the groups which he have classified, एक फर्स्ट ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में आप देखोगे तो तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्वाइट सिमिलर होती है। ये तीनों मेटल्स है, ये तीनों हेलोजेंस है वैसे। और दूसरा ऑब्जर्वेशन उसने क्या किया कि हर एक का फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट जो है ग्रुप का, उनका मीन निकालो, add them and just take out their average or mean. You will get atomic mass of your central element. That are the 2 observations he made, and he gave this 3 triads. Triad क्यों बोला है उसने? Because 3 elements है। Okay, तो ऐसे उसने सिर्फ 3 ग्रुप्स बनाए थे। कितने? सिर्फ 3 ग्रुप्स। तो these first group is known as alkali group metals. These are alkaline earth metals and these are halogens. Okay, alkali group metals, alkaline earth metals and halogens. वैसे उसने 3 ग्रुप्स बना के 2 ऑब्जर्वेशंस किए। अब हम देखते हैं कि इसने क्या लॉ दिया, क्या लिमिटेशन आ गया, क्यों ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेट अस सी ऑल दोस। So Dobenier triad was given in the year 1817 and the name of the scientist, complete full name of scientist is John Wolfgang Dobenier. Okay, उसने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया? तो द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अगर आप देखोगे तो उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ही अरेंज किया है। लाइक लिथियम का एटॉमिक मास आप देखोगे, सोडियम का एटॉमिक मास देखोगे और पोटेशियम का एटॉमिक मास देखोगे, राइट? तो सपोज लिथियम का 20 फॉर एग्जांपल है, इसका 30 होगा और इसका 40 होगा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, राइट? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही उसने अरेंज किया सारे को। So this is about criteria. Triad means it is group of 3 elements having similar properties. What is the law given by Dobenier? Very, very important thing. What is the law given by Dobenier? When 3 elements in a triad were written in order of their increasing atomic mass. When 3 elements in a triad were written in order of increasing atomic mass, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of other 2 elements. Okay, जो भी atomic mass middle element का आता है, it is roughly the average of the first and the third element. Okay, so this is about Dobenier's triad. उसने कब दिया, कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, उसका लॉ क्या है? Very, very important thing. And how will you define triad? It is group of 3 elements having similar properties. अब limitation क्या है इसका? So what is the limitation of Dobenier? तो जब उसने ऐसे और एलिमेंट्स 3-3 के ग्रुप में अरेंज करना स्टार्ट किया ना, तो फिर हर एक में उसका लॉ सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसका लॉ क्या था कि जब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज करता हूँ
तो फर्स्ट और लास्ट का जो मीन होगा वो आंसर एटॉमिक मास होगा सेंट्रल एलिमेंट का, हमारा मिडिल एलिमेंट का, राइट. बट दैट वाज नॉट ट्रू फॉर अदर एलिमेंट्स. दिस इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक. इन तीनों को उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, 14, 31 एंड 74 एटॉमिक मास आप देख सकते हो, राइट. जब उसने इन दोनों का मीन लिया 14 प्लस 74.9 डिवाइड बाई 2, उसे आंसर मिला 44.5 विच इज नॉट नियर टू 31. और फॉस्फोरस का एटॉमिक मास तो 31 है, तो इसीलिए उसका ये लॉ गलत हो गया, बिकॉज this law was only true for 3 triads, 1, 2 and 3, these 3 triads. Okay, all the elements could not be arranged according to the Dobinier's triad. Okay, सारे elements को हम arrange नहीं कर सकते according to Dobinier triad. Like for example, आपको at least एक example तो याद रखना ही होगा, तो ये example याद रख लेना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक. जहाँ पे उसका गलत गया, तो आपको ये 3 ट्रायड्स अच्छे से याद रखने हैं, और ये जिसमें उसका लिमिटेशन आ गया वो अच्छे से याद रखना है आपको. ओके, सो दिस इज अबाउट डोबेनियर. डोबेनियर ने क्या दिया, किस एटलीस्ट उसने क्लासिफिकेशन स्टार्ट तो किया, और कौन से बेसिस पे किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे. उसका लिमिटेशन क्या था कि वो सिर्फ 3 के लिए ट्रू था ये लॉ, बाकी सब एलिमेंट्स के लिए ये ट्रू नहीं था. आई होप यू ऑल आर क्लियर विद डोबेनियर्स ट्रायड नाउ. So the next scientist who came after Dobenier, means Dobenier का एक limitation आ गया था, उससे further classification उससे possible नहीं हुआ. तो Newland was the another scientist who carry forwarded his work. मतलब उसने सोचा, he was aware about Dobenier's work. Okay, he knew that Dobenier is doing something like this. He's thinking of classifying and a proper arrangement of these elements. Okay, so Newland was aware about Dobenier's work. Also, he was aware that he arranged in increasing order of atomic masses. So Newland also thought that let me try in the same way and arrange those elements in increasing order of atomic masses. Okay, but there was one difference in both of them कि Dobenier ने increasing order of atomic mass एक column में start किया था. Okay, first, second, third. Newland ने एक row में arrange किया सबको. Okay, like this. Hydrogen, lithium, beryllium, boron. So he also arranged in increasing order of atomic mass. He also arranged in increasing order of atomic mass, but in a horizontal way. The another very interesting thing which Newland thought for his classification was he was very fond of music. So in music, you know that we have 8 notes like sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. Okay, और उसके बाद वापस से क्या आता है, sa, and then it continues. फिर वापस से क्या आएगा, sa. So every eighth note is similar to the first note. Right, जो first note सा थी और eighth note भी सा है. Right, so every eighth note is similar to the first note. So he saw when he arranged these elements in increasing order of atomic masses, he also saw the same thing कि अगर आप देखते हो तो every eighth note is having the similar property as that of the first one. जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन को ही देख लो, दोनों ही नॉन मेटल्स है, राइट, इवन हाइड्रोजन. तो every eighth element is having the same property as that of the first element. फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सिमिलर टू हाइड्रोजन, क्लोरीन की सिमिलर टू फ्लोरीन, राइट, ऐसे उसने देखा. फिर सोडियम की सिमिलर टू लिथियम, दोनों ही मेटल्स है. मैग्नीशियम की सिमिलर टू बेरिलियम, पोटेशियम की सिमिलर टू सोडियम. तो एवरी एथ नोट इज हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ द फर्स्ट नोट. ऐसा न्यूलैंड ने ऑब्जर्व किया. ओके, so Newland law of octave came in year 1866. The name of the scientist was John Newland. The criteria was increasing order of atomic mass. Same criteria, increasing order of atomic mass. अब इसका law क्या है? He gave the law in this way. When elements were arranged in a horizontal rows in order of their increasing atomic masses. उसने भी increasing order of atomic mass में ही arrange किया, but in horizontal row. The properties of every eighth element were similar to the first. Okay, like eighth note of the musical scale. See, these are laws. So you have to write each and every law as mentioned in the textbook in proper words. So you have to remember the law in this way only. Okay, remember that. Okay, now
So what was his law? When elements were arranged in horizontal rows in increasing order of atomic mass, कुछ भी mug up नहीं करना है, in increasing order of atomic mass, the properties of every eighth element was similar to that of the first element, like eighth note of the musical scale. Okay, this was his law. But यहाँ पे भी कुछ limitations आ गए. उसने try तो किया, but एक limitation आपको table में ही दिखेगा सीधा. So limitation आपको table में ही दिखेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो, after calcium, कहाँ पे हमने स्टॉप लगाया? कैल्शियम के बाद. अगर आप धीरे 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 आगे आओगे, राइट, तो आपको दिखेगा कि नो, क्या कोबाल्ट एंड निकल की प्रॉपर्टीज एज आर दे सिमिलर टू दैट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन? ये सब हेलोजेंस है और कोबाल्ट एंड निकल तो मेटल्स है, तो दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. सिमिलरली आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज आफ्टर कैल्शियम देखोगे, तो ये जो उसका लॉ था कि एवरी एथ एलिमेंट इज हैविंग सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, राइट, was proved wrong. So this was its limitation कि after calcium this was not true. After calcium every eighth element did not possess same property as that of the first element. Second thing, his second limitation was कि तब उस टाइम तक सिर्फ 56 एलिमेंट्स वर नोन, बट बाद में धीरे धीरे एलिमेंट्स बढ़े, तो उसने कहीं पे भी ऐसा नहीं सोचा कि 56 के से आगे भी एलिमेंट्स आएंगे. Okay, he assumed that only 56 elements exist. He never thought कि उसके आगे कोई एलिमेंट्स आएंगे. So he thought he only 56 elements exist on earth and no more element will be discovered. But later many elements were discovered. So this was his second limitation. Third limitation is to accommodate elements in the table. He not only placed two elements in same slot but also placed unlike elements in similar column. उसने ना सिर्फ उसको क्या करना था कि सारे एलिमेंट्स उसको एक ही टेबल में अरेंज कर देने थे, तो उसने कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह पे डाल दिया साथ में. तो उसने दो एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में डाला, और ना सिर्फ इतना, उसने ऐसे स्लॉट में डाला जिसकी प्रॉपर्टीज ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट से बिल्कुल ही अलग थी. ओके, एंड दिस एग्जांपल इज कोबाल्ट एंड निकल. ओके, as these are placed with halogens. The last limitation was noble gases. Last limitation was noble gases. Now, what happened? Later on, noble gases were discovered, okay? And after that discovery, this law of octave was not at all satisfied. Why it was not satisfied? Because noble gases, suppose helium है, neon है, argon है, krypton है, xenon है, अगर वो हम increasing order of atomic mass में arrange करेंगे ऐसे, तो every, पहले तो जगह ही नहीं है अरेंज करने के लिए. दूसरी बात कि हीलियम की प्रॉपर्टी कभी भी इनसे सिमिलर नहीं होगी. They can never be similar to this because helium do not react with anybody, while these all can react with some or the other thing. These are noble gases, right? So they cannot ever get arranged in this periodic table. So it was completely wrong. So what you all have to do is you have to just focus on the white part. जो मैंने white part underline किया है, आप वैसे short form में फटाफट से limitations को याद रख सकते हो. And then you can make frame, just read once the full limitation and then you can frame by yourself. So whenever you prepare this, just remember the main 4 points, underline them whenever you write them in your test or in your exams. Underline these things, okay? That first limitation is applicable only till calcium. Assume that only 56 elements exist. Place two elements in same slots, that is cobalt and nickel, and noble gases, right? तो ये 4 limitations आप easily याद रख सकते हो ऐसे. Now इसके बाद यहाँ पे तो न्यूलैंड का लिमिटेशन आ गया. अब कोई और साइंटिस्ट आया और उसने अपनी तरीके से पीरियोडिक टेबल सोचा कि कैसे देते हैं. So before we move to our next scientist, I want to explain you one word, that is periodicity. What is periodicity? Here you saw, okay, there is repetition of a certain property after a certain interval. Repetition of properties after a certain interval, right? I repeat, यहाँ पे क्या हो रहा है? Repetition of properties after certain interval. मतलब eighth property, every eighth element की जो property है वो है same as that of the first element है. मतलब properties repeat हो रही है after certain interval, and that is known as periodicity. When there is repetition of properties after certain interval, okay? So how do you define that? Periodicity of properties, that when elements are arranged in order of their increasing atomic mass, the elements having similar properties,
रिपीट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। ओके, जो एलिमेंट्स है जैसे एक्स एंड वाई की सिमिलर प्रॉपर्टीज है तो वो आफ्टर सर्टेन इंटरवल रिपीट करेंगे। ओके, वो आपको दिख ही जाएंगे सर्टेन इंटरवल के बाद। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी of elements. Okay, also you can simply write that it is repetition of certain properties after certain interval. Okay, repetition of properties after certain interval is known as periodicity. Okay, so let's see now ki after Newland, with who was the scientist who tried to give and classify elements, okay, in a better way. After that, the scientist who tried to classify the element was Mendeleev. Okay, Mendeleev is known as father of periodic table because he started classifying the elements in a very nice way. उसका criteria क्या था? उसका criteria same था, increasing order of atomic mass. जो उसने डोबेनियर का देखा, जो उसने न्यूलैंड का देखा, वैसे ही उसने अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। ओके, इन अ रो हॉरिजॉन्टली उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास लिया। देखो लिथियम, बेरिलियम, इसका 6.9 है, इसका 9, तो उसने ऐसे ही अरेंज किए सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। ओके, बट उसने सिर्फ यही एक पर्सपेक्टिव नहीं लिया था, उसने और एक पर्सपेक्टिव को फॉलो किया और फिर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। पहले तो उसने रो में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख दिया। ऑल्सो उसने क्या देखा कि ये लिथियम है, कोई भी एलिमेंट है, एनी एक्स एलिमेंट ले लो, वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है और वो हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो उसने कोई भी एक्स एलिमेंट लिया और ऑक्सीजन के साथ उसको कंपेयर किया। जब उसने कंपेयर किया, रिएक्ट करवाया, तो उसे पता है क्या फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, उस एलिमेंट की वैलेंसी सपोज 1 है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा X2O। सिमिलरली हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, तो इट इज X एंड H, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, X की सपोज 1 आई, तो फॉर्मूला विल बी XH, और आई कैन से RH, R में ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो RH, राइट। तो उसने क्या किया, उसने ये बोला कि हर एक एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ तो रिएक्ट करता ही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसकी वो भी उसका एक सेकेंड क्राइटेरिया ले लिया कि जो भी एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ R2O फॉर्मूला देंगे और हाइड्रोजन के साथ RH फॉर्मूला देंगे, उनको मैं एक कॉलम में डाल देता हूँ, उनको मैं एक ही कॉलम में डाल देता हूँ। ओके, तो पहली चीज उसने क्या सोची कि कोई भी एलिमेंट्स है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में हॉरिजॉन्टली अरेंज किया, तो आपको रोज में देखने को मिलेगा कि हर एक एलिमेंट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस है। और दूसरा उसने कॉलम में क्या देखा, कॉलम में उसने ऐसे बनाया कि हर एक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ कैसे फॉर्मूला दे रहा है। ओके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कैसे फॉर्मूला दे रहा है। ऑब्वियसली देयर वर सम फॉर्मूलाज दैट R2O, ऑक्सीजन के साथ R2O फॉर्मूला पॉसिबल है, RO फॉर्मूला पॉसिबल है, R2O3 फॉर्मूला पॉसिबल है, मतलब किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 3 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, राइट। सो उसने ऐसे कॉमन फॉर्मूलाज लिख दिए हर एक के, जो एलिमेंट्स दे रहे, और जो एलिमेंट्स R2O और RH जैसे फॉर्मूला देते हैं वो इधर अरेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पोटेशियम। चलो, पोटेशियम की वैलेंसी क्या है, 1। ऑक्सीजन के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो पोटेशियम की फॉर्मूला आ गई K2O। ओके, फिर हाइड्रोजन के साथ पोटेशियम की फॉर्मूला क्या आएगी, इट इज 1 1, सो इट्स फॉर्मूला विल बी KH। सो यहाँ पे देखा आपने, इट इज सिमिलर टू R2O, अगर मैं R को K रख दूं then it will be R2O. So पोटेशियम ने आपको क्या फॉर्मूला दी, ऑक्सीजन के साथ R2O और हाइड्रोजन के साथ RH, तो जिसकी भी वैलेंसी 1 थी मोस्टली वो यहाँ पे है। ओके, ठीक है, बट हियर यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ आप देखोगे इधर कोई भी एलिमेंट्स वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। ओके, सो उसने क्या किया था, अलग अलग कार्ड्स बनाए, जैसे हम कार्ड्स खेलते हैं ना, वैसे प्लेन कार्ड्स लिए उसने, फिर हर एक एलिमेंट के मास लिखे, जैसे पोटेशियम का मास लिखा, हर एक एलिमेंट का मास लिखा, एंड आफ्टर दैट उसने देखा कि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कैसे कंबाइन होता है और उनकी फॉर्मूलाज उसने लिख दी। फिर जो जो एलिमेंट सेम फॉर्मूला दे रहे थे उनको उसने यहाँ पे एक ही कॉलम में अरेंज किया। एक कॉलम में क्या अरेंज किया उसने क्या देखा, कॉलम का अरेंजमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन के ऊपर।
जबकि रो का अरेंजमेंट उसने किस बेसिस पे किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो ऐसे उसने कॉलम्स और रोज पे फोकस किया। दैट इज वाई, बिकॉज यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे ग्रुप्स बन रहे हैं और पीरियड्स बन रहे हैं। ओके, ग्रुप्स एंड पीरियड्स बन रहे हैं। जो भी वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ऐसे, इन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स। ओके, कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स and rows are known as periods. Okay, so now we are going to study this Mendeleev's periodic table in detail in our next lecture. Okay, you just refer to this table once and read about Mendeleev and Newland in detail from your textbook, the yellow box part. 31, you have to do 7 questions, BBQ 1, 2, 3, page 81, and these 4 questions, all of the questions we have discussed. So without fail, you try and attempt all the questions by yourself, and after learning you try to write the answers. Read textbook page number 79, 80 and 81 without fail students. आज का preparation आज ही करना है, जैसे मैंने starting में भी बताया. Okay, so just read these pages. Only I want to discuss one question, is that is BBQ 1. Did Daubigny's triad also exist in the columns of Newland's octave? Compare and find out. ओके यस, डोबिनियर के सारे जो 3 ट्रायड्स थे, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, वो आपको तीनों के तीनों ट्रायड्स जो थे वो आपको दिखेंगे न्यूलैंड ऑक्टेव की टेबल में भी. सो जस्ट चेक इट आउट एंड देन राइट योर आंसर. ओके ओके स्टूडेंट, thank you so much for listening to this lecture so attentively. Now we will meet in our next lecture. Till then, bye bye and take care. Keep practicing. Bye.